أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ بڑی مسرت ہو رہی ہے آج کی اس تقریب میں. کئی تقریبوں میں جانا ہوا لیکن آج کے اس ریٹائرمنٹ کی تقریب کی نوعیت الگ ہی ہے. ایک خلوص جو ہے آج یہاں جھلک رہا ہے. تو آج کے اس گورنمنٹ اردو فیض پورہ اسکول میں علی جناب معزز صدر معلم مدرسے اس مدرسے سے ریٹائر ہوئے میرے مراد بھائی اسد سلیم صاحب اور اسی مدرسے سے ہیڈ ماسٹر کے پروموشن پر چلے گئے ہمارے اور ایک سینئر ساتھی محمد خورشید میاں صاحب. آج ان دونوں کی اس تقریب میں وداعی تقریب اور ایک طرح سے اس تقریب کے صدر جلسہ مدرسہ اعلیٰ کے صدر معلمہ شنو ٹیچر صاحبہ اور ہمارے درمیان آج اس جلسے میں مہمانان خصوصی علی جناب علی وقار محترم خوشحال راؤ یرنلی صاحب بی آر سی بیدر اور اس بیدر تعلقے کے اردو بی آر پی علی جناب محمد احمد صاحب اور اس کلسٹر کے سی آر پی رفیق دوست محترم مصطفیٰ قادری صاحب اور عظیم پریم جی فاؤنڈیشن کے تعلقہ ریسورس پرسن مزمل صاحب. اور ہمارے درمیان ایک اور عظیم شخصیت ہے. میں بچوں سے دوبارہ ان کا تالیوں کے ساتھ استقبال کرنا چاہ رہا ہوں. میرے مراد محمد یوسف میر جلیل صاحب ہیں جو اردو زبان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں اور بڑے ہی جو ہے خلوص کے ساتھ اردو مدارس ہی نہیں بلکہ بیدر تعلقہ ضلع کے تقریباً سرکاری اردو کنڑ مراٹھی ہندی اسکولوں میں پہنچ کر 100 سے زیادہ اسکولوں میں پہنچ کر تعلیمی اشیاء کی تقسیم کے سلسلے کو برقرار رکھے ہوئے ایسی شخصیت ہمارے درمیان ہے جو یاران ادب بیدر کے سیکریٹری بھی ہیں، ادیب ہیں، مترجم ہیں، پوئٹ ہیں، کوی ہیں، شاعر ہیں. یہ بات میں بچوں کے ذہن نصیر ہو اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان معذرت صاحب کے بھائی صاحب ہیں اور ان کے دوست احباب ہیں اور اس مدرسے اعلیٰ کے ایس ڈی ایم سی کے صدر اور معاون صدر صاحبہ اور تمام اراکین اور اس مدرسے اعلیٰ کے معلمین و معلمات پیارے بچے. چونکہ یہ ہر ایک فنکشن کا جلسے کا ایک 2 سے 3 منٹ ابتدائی کلمات ہونا ضروری رہتا ہے تو ان کلمات کو میں وقت لے لیا ہوں. اپنی بات کو کرتے ہوئے میں بچوں کے لیے 2 بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہاں پہ ہمارے لیے ایک مثال بن کر اپنے ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی اپنے خدمات کے لیے جانے جا رہے ہیں، پہچانے جا رہے ہیں محمد عبدالسلیم صاحب. ان کے لیے ایک زوردار تالیاں ہو جائیں. میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ آپ کو مزید صحت دے، تندرستی دے اور آپ کو جو ہے حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے اور مزید جو ہے ایسی سرکاری مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے آگے آئیں اور آپ کا اس کا عذر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عذر عظیم کے طور پر آپ کے خاندان، اہل خاندان اور آنے والے نسلوں تک جو ہے اس سلسلے کو برقرار رکھنے کی اللہ آپ کو مزید طاقت دے. اسی طرح سے ہمارے درمیان سی آر پی بول کر کام کیے ہیں. راؤ طالب کے سی آر پی کے خدمات انجام دینے کے بعد آپ پریڈ مکمل ہونے کے بعد یہاں پہ بحیثیت معلم آپ یہاں پہ حاضر ہوئے اور جیسے آپ سب جانتے ہیں احمد سر بھی اور مصطفیٰ قادری سر بھی آپ کے
बच्चों के बेसिक नॉलेज को दुरुस्त करने में आप अपने जो है मशहूर हो गए यहाँ पे, और गली गली के आरपी के तौर पर भी आप काम किए हैं हमारे साथ। तो मेरे मुराद खुर्शीद साहब हैं, रिटायर्ड हुए, BLO से रिटायर्ड नहीं हुए अभी, वो हेडमास्टर बनकर बौगी चले गए, लेकिन फैजपुरा के इलाके में अभी भी वो BLO के खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आप दोनों के खिदमत यहाँ स्कूल के लिए, मदरसे आज़ा के लिए, हमारे महकमे के लिए एक मिसाल ही है, एक तारीख के आपका एक अलग से ही तारीखी हिस्सा है। आपके ये खिदमत बच्चों के लिए एक मशल राह साबित होंगे। मैं बच्चों से कहना चाहूँ कि आप अपने बड़ों के नक्श कदम को, जो भी आपको इल्म नाफिया मिल रहा है, मैं तमाम औलियाए तुलबा और यहाँ पे मौजूद मौलवीन व मौलिमात से भी ख्वाहिश करता हूँ कि आपके इल्मी खजाने से आप बच्चों को हमेशा इल्म नाफिया बरतिए, ताकि उनको अच्छी तालीम व तरबियत मिले, और वो तालीम व तरबियत उनको एक बेहतरीन तहजीब के मालिक बनाए, और वो तहजीब उनको आने वाले दिनों में मुल्क के एक अच्छे शहरी बनाए, और मुल्क व मिल्लत के काम में उनके जो है खिदमत जो है अल्लाह उनको खिदमत के लिए कबूल करे। और उसके लिए जैसे यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी मदारिस शहरिया में बीदर के लिए ये एक आम बात है कि गवर्नमेंट सरकारी मदारिस में बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन बनिस्बत चंद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे गांव से भी बच्चे जो है दाखिला लेकर सरकारी मदारिस में आ रहे हैं। हमारे मुस्तफ़ा कादरी साहब के क्लस्टर में गुज़िश्ता कई दिनों में हम देख रहे हैं 2-3, और इधर राव तालीम के नूर खां तालीम में, और ये फैजपुरा में बच्चे गांव से, शाहपुर गेट से, दूसरों इलाकों से जो है ऑटो की शक्ल में आ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के टीचर्स जो है उनके माँ बाप का दिल जीत चुके हैं, उनके माँ बाप का एतमाद हासिल करके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिले के बजाय उनको एतमाद में ला कर ये बता चुके हैं कि हम आपको बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे रहे हैं, आप हमारे पर भरोसा रखिए, हम आपके बच्चों को बेहतरीन तालीम से नवाजेंगे। और इसके लिए वो अपने खिदमत दे रहे हैं। मैं सब टीचरों का मशकूर रहूँगा कि जो इस तरह से जो है एक मिसाल बन रहे हैं हमारे सरकारी मदारिस को ना ही बचाने की बल्कि तरक्की की तरफ ले जाने के लिए एक मिसाल कायम करें। ऐसे ही करते रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको और जो सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपके इल्मी खजाने में आपको इल्म नाफिया से नवाजे और कौम मिल्लत से मिल्लत की फलाह बहबूदी के लिए काम ले। इसी तरह से जो है हमारे दरमियान देखिए कुछ बातें आए कि आपको एक तालीम जो दी जा रही है सही मानों में तिजारत में नफ़ा है, हमारे को ये बातें हैं, लेकिन आप एक कौम मिल्लत के भलाई के लिए आला तालीम हासिल करना है, आपको एक IAS ऑफिसर भी बनना है, IPS ऑफिसर भी बनना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे कौम मिल्लत की तरक्की तभी मुमकिन है जब हम उसका दर्द रखने वाले अफसरान को हम अपने साथ में पाएंगे। तो आप सबको एक बड़े अफसर के हैसियत से आगे चलकर आला तालीम हासिल करना है। करेंगे? IAS ऑफिसर बनेंगे, IPS बनेंगे, अच्छे टीचर बनेंगे, अच्छे वकील बनेंगे, अच्छे पुलिस ऑफिसर बनेंगे, जो भी बनेंगे अच्छे इंसान बनने के साथ साथ एक अच्छे आप क्या है आपको जैसे कहा गया है कि आप इसके अलावा भी आपको जो है आपके मशगले को तिजारती मशगले से जोड़िए। आप अपने मसरूफियात में जो है एक अच्छे शायर बनने की कोशिश कीजिए, राइटर बनने की कोशिश कीजिए। राइटर कभी जो है अपनी कलम से जो है किसी भी वक्त इनकलाब ला सकता है, लाने की कोशिश करेंगे। मजीद बहुत कुछ बातें जहन में आ रही है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हम अभी हमारे मेहमानों को सुनना है। मैं यहाँ पर अपनी बात को यहीं पे जो है रोकते हुए, अपने जज्बात को रोकते हुए, मैं असद सलीम साहब की कोशिश जो उर्दू स्कूलों में जहाँ पे एडमिशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे टीचर जो काम कर रहे हैं वो काम का ही नतीजा है। जैसे आपने अनाउंस किया था कि सरकारी मदारिस में हिस्सा लेने वाले
दाखिला लेने वालों को 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। सर नूर खान तालीम में विशाल सर नूर खान तालीम में एडमिशन के लिए 1001 रुपये का इनाम आप दिए, वहाँ पे एडमिशन बढ़ गई। यहाँ पे स्लम एरिया में ये जैसे UKG LKG को दूसरे रूरल में था, लेकिन अफसरान को डोडे साहब होते, दूसरे PO होते, हमारे DPS सलीम साहब होते, उनके जहन में लाकर जो है मुस्तफ़ा कादरी साहब की सरपरस्ती में क्या है, यहाँ पे LKG UKG को किसी भी सूरत में लाने के लिए भरपूर कोशिश की है। सलीम सर, उसका सहरा सलीम सर को जाता है, उनके साथ तमाम अफसरान को जाता है, तमाम हमारे CRP हजरात को जाता है कि आप इस तरह से फिक्र कर रहे हैं बोलकर कि बच्चों के लिए कुछ पढ़ना लिखना आसान हो रहा है कि बच्चे LKG से ही क्या होता है प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अगर हमारे स्कूल में ही LKG UKG आया तो वो बच्चे जो है यहाँ पे अपनी तालीम को आसानी के साथ सरकारी स्कूल में पूरे सहूलियात आपको मिल रहे हैं। आपको फ्री यूनिफॉर्म मिल रहा है, फ्री किताबें मिल रहे हैं, BC ऊटा मिल रहा है, अंडे मिल रहे हैं, मौज मिल रहा है। हर तरह से आपको जो है आने वाले दिनों में जो है अभी आपको दो जोड़ी सॉक्स के साथ 1 जोड़ी जो है जूते मिलेंगे, और आने वाले दिनों में कॉपियाँ भी आपको फ्री मिल रहे हैं और बैग भी मिलेंगे। तो आप सब औलिया तुलबा से SDM से भी मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इस इलाके के लिए ये एक मिसाली इदारा नहीं है, स्कूल नहीं है, बल्कि हमारे तालुके की शान बनने जा रहा है। आप अपना ताउन दीजिए, साथ दीजिए और सब मिलकर और एडमिशन जैसे 101 क्रॉस किए हैं। मैं शन्नो टीचर के लिए, सलीम सर के लिए एक जोरदार तालियों की अपील करता हूँ। कहते हैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने ज़रिए ख्यालात से हमें नवाजने के लिए। सर को भी हम मुबारकबाद देते हैं, हैदर अली सर को भी, जिन्होंने हमारे अब्दुल अजीज शायर, मुसन्निफ और याराना अदब के जो सेक्रेटरी हैं, उनके बारे में बहुत ही अच्छे ख्यालात पेश किए हैं सर ने, और इसको आपने छपाया भी है शायद सर अखबार में। जी सर को भी हम मुबारकबाद देते हैं तालियों के साथ एक बार हैदर अली सर को। अब सर हमारे पास 101 साल एडमिशन हुए, टोटल बच्चे 195 बच्चे हैं सर, टोटल 195 है, 101 एडमिशन इस साल हुए। LKG UKG अलग 63, हाँ उनके उसमें 63 एडमिशन हुए LKG और UKG। तो सर मैं यहाँ पर जब स्कूल के बारे में अपने ख्यालात बताने के लिए और जो किताब में छपाया गया है उसके बारे में बताने के लिए मैं फहमीदा यास्मीन टीचर से इल्तमास करती हूँ कि वो आए और स्कूल के शुरुआत और अभी तक जो भी किया टीचर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा स्कूल खूबसूरत स्कूल, ये स्कूल मेरा नहीं, हर एक के लिए अपना स्कूल है, क्योंकि महल्ले में स्कूल पे लिखा हुआ है हमारे महल्ले का स्कूल, तो सबका अपना स्कूल है। गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल फैसला बिदर, ये फैज़ान नज़र बख्शा गया अहले मकतब को, ये फैज़ान नज़र बख्शा गया अहले मकतब को, हदफ रेज़ों से कर लेते हैं लाल व गौहर पैदा। हमारे उर्दू और कन्नड़ स्कूल का आगाज़ 1997 ईस्वी में हुआ। उर्दू की इमारत की तामीर का काम 2001 ईस्वी में हुआ। उर्दू स्कूल में दाखिला लेने वाले तालिब इल्म, सबसे पहले दाखिला लेने वाले इमरान वल्द बुरहानुद्दीन, और कन्नड़ स्कूल में दाखिला लेने वाले तालिब इल्म रमेश वल्द कंटप्पा है। फैजपुरा गवर्नमेंट स्कूल कन्नड़ और उर्दू मीडियम की बुनियाद रखने वाले मौलिम श्री बसवाराज याखतपुरी सर थे। स्कूल की इमारत नहीं होने की वजह से दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज़ के दरख्तों के नीचे तुलबा और तालिबात को तालीम दी जाती थी। बाद एक कमरा किराए पर लेकर तुलबा को तालीम दी जाने लगी। इसी दौरान उर्दू टीचर मोहतरमा नसरीन फातिमा साथ ही साथ
اساتذہ کا تقرر بھی ہوتا گیا۔ سال 2001 عیسوی میں محترم محمد خواجہ حبیب الدین کونسلر نے ذاتی ملکیت اسکول کے لیے تحفے میں دیے تاکہ اسکول بہتر طریقے سے چل سکے۔ 15 اگست 2001 عیسوی میں اسکول کی عمارت مکمل ہوئی۔ اردو کی ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے 2002 عیسوی میں اردو مدارس کو کنڑا مدارس سے علیحدہ کیا گیا۔ 2011 اور 12 میں ہمارا مدرسہ لوور پرائمری سے ہائر پرائمری میں تبدیل ہوا۔ 2013 میں صدر معلمہ محترمہ ارجمن بانو کا تقرر ہوا۔ اسکول کے طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوا، ترقی ہوئی، اساتذہ کا بھی تقرر ہوتا گیا۔ 2021-22 میں انگلش میڈیم بائلنگل اسکول کا آغاز جناب گلشن صاحب، سید فرقان پاشا صاحب، سید خورشید حاجی صاحب اور محترمہ ارجمن بانو صدر معلمہ کے دست مبارک سے ہوا۔ طلباء اور اساتذہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ 9 جون 2002 عیسوی میں 9 جون 2022 عیسوی میں جناب محمد عبدالسلیم صاحب معلم کا گورنمنٹ مرخہ تعلیم اسکول سے صدر معلم کی حیثیت سے وائس پرا اسکول میں تقرر ہوا۔ اب اس کے آگے ٹیچر اور سروں نے سبھی بتایا سر کا کام کیسا رہا، آپ سبھی نے جانے۔ سر آنے کے بعد یہ اسکول میں کیا ہوگا، ترقی ہوتی گئی۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنے جگہ